ठीक है, सेक्शन 7 और 8 भी करेंगे। सेक्शन 7 और 8 आपका प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं उसके शॉर्ट नोट्स लिखवा दूंगी आपको। ठीक है, एंड फिर हम देखते हैं आगे, अगर हमारे पास टाइम लगा। कितने बजे तक है? 4 बजे तक। पहले बताओ कहाँ तक लिखा था आप लोगों ने? सेक्शन 6 के लिख रहे थे हम, है ना, जब पिछली बारी क्लास। हाँ, चलो इस पे करते हैं, क्लास के बाद चर्चा की जाएगी। चलो, लास्ट लाइन बताओ क्या लिखी थी? अब इसमें लिखो थर्ड मेन पॉइंट, डिस्पोजिशन। हमारा फर्स्ट मेन पॉइंट क्या था? बाय whom द सूट हैज टू बी इंस्टीट्यूटेड। सेकंड मेन पॉइंट हो गया अगेंस्ट whom। थर्ड लिखो डिस्पोजिशन। इसमें लिखो द सूट ऑफ सेक्शन 6, the suit of section 6 is maintainable. Suit of section 6 is maintainable only if the plaintiff has been dispossessed by the defendant. If the plaintiff was never in the possession of if the plaintiff was never in the possession of the property, then never in the possession of the property, then no question of dispossession, then no question of dispossession arises. Full stop. Therefore, the suit of section 6 will not be maintainable. नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखना शुरू करो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, if the plaintiff has been dispossessed, according to the procedure established by law, then also suit under section 6 is not maintainable. Also, suit under section 6 is not maintainable. ये दीपांशु घर में क्या कर रहा है आज? दीपांशु जी कैसे हैं आप? अगर आप सुन रहे हैं तो आगे लिखो therefore for the purpose of, हाँ इसी के कंटिन्यूएशन में, therefore for the purpose of relief of section 6, the dispossession must be
unauthorized. Next paragraph. If the dispossession has been, must be unauthorized, full stop. Next line में, if the dispossession has been with the consent of the plaintiff, with the consent of the plaintiff, then also suit under section 6, then also suit under section 6 is not maintainable. Therefore, if the possession is taken, if the possession is taken कहाँ पे? Full stop. Therefore, if the possession is taken on the basis of force or fraud, therefore, if the possession is taken on the basis of force or fraud, then the suit of section 6, only then the suit of section 6 is maintainable. तो मैंने आपको याद है पिछली बार एक एग्जांपल दिया था कि लैंडलॉर्ड ने टेनेंट से घर खाली करवाया कि मुझे रिपेयर करवानी है एंड उसके बाद वो पोजेशन नहीं दे रहा था, तो क्या उस केस में सेक्शन 6 का सूट फाइल हो सकता है? नहीं, बिकॉज कंसेंट जो लिया गया था एंड वो वैलिड कंसेंट था. अगर यही उसने फ्रॉड के बेसिस पे लिया होता देन सेक्शन 6 का सूट मेंटेनेबल था. अब इसमें एक कंक्लूजन लिखो. कंक्लूजन में फर्स्ट पॉइंट लिखो. If the dispossession is in accordance with the law, then section 6, then suit of section 6 is in accordance with law, then section 6 is not applicable. If the dispossession is, second point, if the dispossession is with the consent of plaintiff, with the consent of the plaintiff, then in such case also, the suit of section 6 is not maintainable. Third point, if the plaintiff is dispossessed, but after taking the consent fraudulently or forcefully, then the suit of section 6 is maintainable. ठीक है, अब लिखो क्वेश्चन. If a landlord forcefully dispossesses the tenant, then whether in such case tenant can file suit under section 6 or not. If a landlord forcefully dispossesses the tenant, then whether in such case tenant can file suit under section 6 or not. इसमें लिखो, under section 6
suit can be filed even against the title holder of the property. Suit can be filed even against the title holder of the property if the dispossession is without consent. Therefore, if the tenant is dispossessed, by the landlord, therefore, if the tenant is dispossessed by the landlord without consent, the tenant can file a suit under section 6 for recovery of possession. Second question लिखो. A landlord takes the possession of property from tenant for the purpose of repairing the property. A landlord takes the possession of the property from tenant for purpose of repairing the property, full stop. After repairing the property, he refuses to hand over the property to tenant. Hand over the property to tenant, full stop. Whether tenant can file a suit under section 6 होगी. आंसर लिखो. Whether suit under section 6 is maintainable. भानु ने पढ़ना शुरू कर दिया. ओहो, बादाम खाया करो. और जो उल्टे काम करते हो वो छोड़ दो थोड़े से. और एक ना मेमोरी के लिए वो आता है, ब्रह्मी आता है. हिमालय का नहीं, उसका आता है ना, बैद्यनाथ. हिमालय तो ऐसे ही है, मतलब ऐसे नहीं है, बट बैद्यनाथ इज मच मोर ऑथेंटिक एंड मतलब विदाउट प्रेजर्वेटिव्स. बैद्यनाथ बी से है. नाम भी लिख रहा है. देखो, होम्योपैथिक कभी ट्राई किया है? मेडिसिन काम करती है, ठीक है. अगर आपने कभी होम्योपैथी और एलोपैथिक को वो किया है ना, कभी एलोपैथिक डॉक्टर को जाके बोलना मैंने होम्योपैथिक दवाई खाई है, वो बोलेगा गधे हो तुम. वो कहते हैं कि होम्योपैथिक इज अ मिथ, ठीक है. वेराज मतलब कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं ढूंढ पाए वो इसके पीछे, लेकिन वो मानते नहीं है होम्योपैथिक को. वो आयुर्वेदिक को भी नहीं मानते हैं. ठीक है. होम्योपैथिक जो है ना, वो आपकी जड़ से प्रॉब्लम को निकालती है, बट एलोपैथिक वाले उसको बिलीव नहीं करते. एलोपैथिक वाले कहते हैं कि इंस्टेंट इफेक्ट हमारी दवाई देती है, विच इज वेरी ट्रू. हर एक
जो आपकी ये पैथी है ना, हर एक स्टडी है ना, उसकी कुछ लिमिटेशंस है। सर्जरी होम्योपैथिक वाले नहीं कर सकते, वो आपको एलोपैथिक डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, सर्जन के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं अपने पापा की बात बताती हूँ। पापा को जो पता ही है तुम लोगों को, स्ट्रोक हुआ था, जनवरी में हुआ था पिछले, तो पिछले मतलब कि यही साल वाले। तो जो उनको स्ट्रोक हुआ, स्ट्रोक का एक रीजन होता है कि आपका कहीं क्लॉटिंग हो रखी है। तो उनके जो सारे टेस्ट आए, उनका यहाँ पर ब्रेन के इधर पे थोड़ी सी क्लॉटिंग आई, माइनर क्लॉटिंग आई वहां पर। ठीक है, अब एलोपैथिक वालों के लिए, मैं आउट ऑफ द टॉपिक चले गए, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। एलोपैथिक वालों के लिए उस क्लॉट को रिजॉल्व करने की उनके पास कोई मेडिसिन नहीं है। वो कहते हैं कि आपकी जो चल रही है मेडिसिन, ब्लड थिनर्स, हम वही दे सकते हैं कि ताकि और क्लॉटिंग ना हो। बट हम जो क्लॉट बन चुका है उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है। होम्योपैथिक वालों के पास है, अर्निका करके एक मेडिसिन आती है, वो कहीं पर भी अगर आपकी क्लॉटिंग हो रखी है ना, तो वो उसको रिजॉल्व कर देगी। ठीक है, तो होम्योपैथिक वर्क करती है ओनली इफ यू बिलीव इन इट। होम्योपैथिक में कुछ नहीं होता, आयुर्वेदिक मेडिसिन में होता है, वो परहेज डालते हैं। ठीक है, बट होम्योपैथिक में कोई परहेज नहीं होता। एंड होम्योपैथिक का अगर आप देखो ना, उसका एक और बड़ा रिमार्केबल सा फीचर है, वो जितनी आप डाइल्यूट करते जाओगे ना, वो उतनी इफेक्टिव होती है। अगर आप कहीं देखो ना, अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन कभी लो, तो एक तो उसकी 30 पोटेंसी आती है और एक होती है उसकी 200 पोटेंसी। तो मतलब कि 1 पार्ट ऑफ द मेडिसिन इज मिक्स्ड विथ 30 पार्ट्स ऑफ डाइल्यूटेड वाटर, 30 पोटेंसी का। एंड 200 मतलब कि 1 पार्ट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन विद 200 पार्ट्स ऑफ डाइल्यूटेड वाटर। ठीक है, तो होम्योपैथिक जितनी ज्यादा डाइल्यूट होगी ना, वो उतनी ज्यादा इफेक्टिव होती है। विच इज एक पॉइंट की जरूरी नहीं है कि वो हर किसी को सूट करे, बट देन दैट इज ऑल्सो ट्रू विद एलोपैथिक ऑल्सो। हर किसी को हर एक मेडिसिन सूट नहीं करती, बट होम्योपैथिक का एक सेफ साइड ये होता है कि उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, वेराज एलोपैथिक के ढेर होते हैं। उनकी हर एक मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। बिल्कुल, चलो आ जाओ वापस। हमारा ये सवाल शुरू कहाँ से हुआ था? अच्छा, तो बिल्कुल जी, अगर आप देखो ना, तो ये सारी होम्योपैथिक मेडिसिन इज आल्सो डिराइव्ड समवेयर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट्स जो हमारे प्लांट्स के होते हैं। ठीक है, जो ये प्लांट्स में से एक्सट्रैक्ट्स निकलते हैं वो ही होम्योपैथिक मेडिसिन होते हैं एंड नेचुरल होते हैं। एंड सिमिलरली आयुर्वेदिक मेडिसिन भी नेचुरल उस पे बेस्ड होते हैं। तो मेरे घर पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, मैंने लगा रखे हैं, जो आयुर्वेदिक जो हर्ब्स वगैरह होते हैं। ठीक है, इनकी लॉन्ग यूजेज आपको करनी पड़ती है टू रीप द बेनिफिट्स। उतनी पेशेंस आजकल की जनरेशन में होती नहीं है। ठीक है, बट अगर आपको बीमारियों से दूर रहना है, तो एलोपैथिक दवाइयों से भी दूर रहो। माइनर सी चीजों के लिए मत लिया करो। हेडेक हो गया, डिस्प्रिन उठा के खा ली, मत खाओ। ठीक है, चलो। बट अगेन ऑल्सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप लोग भी नेचुरल चीजों पे रिलाई कर सकते हो ना, रादर देन ये वाली एलोपैथिक मेडिसिन, तो यही चीज करो। अवॉइड मेडिसिन। ब्रह्मी इज अ वंडरफुल मेडिसिन अगर आप उसको कंटिन्यूसली यूज करो। ठीक है, अश्वगंधा आता है फॉर स्ट्रेस रिलीविंग। ठीक है, उसके मेरे पास अश्वगंधा का प्लांट है, तो उसकी अश्वगंधा का हर एक पार्ट इज यूजफुल। उसकी लीव्स के अलग बेनिफिट्स हैं। ठीक है, उसकी स्टेम के अलग बेनिफिट्स हैं, उसकी रूट्स के अलग बेनिफिट्स हैं। ठीक है, जब पापा को फ्रैक्चर हुआ था, तो एक हर्ब आता है हड्डजोड़ करके। ठीक है, वो जितनी जल्दी आपकी हड्डी जोड़ सकता है, उतनी जल्दी वो कोई और मेडिसिन जोड़ ही नहीं सकती। मतलब मेडिसिन ही नहीं है एनीवेज हड्डी जोड़ने के लिए, बट आयुर्वेदिक के पास है। और वही उसके एक्सट्रैक्ट निकाल के हिमालय वालों ने वही हड्डजोड़ नाम से मेडिसिन लगाई हुई है। चलो आ जाओ वापस।
क्या लिखा था हमने? आंसर लिखना है ना हमने। गर्म तो बहुत होती है। अंडर सेक्शन 6 तुम लोग का इस टाइम तक पढ़ने का मन नहीं रहता ना, ऐसे होता है बैठ के बस आप बोल लो हम सुन लेते हैं, थोड़ी सी गप्पे मार लेते हैं। हाँ, हमें कष्ट मत दिया करो, है ना। ऐसे ही होते हैं ना तुम लोग का इस टाइम मूड। अंडर सेक्शन 6 द पर्सन मस्ट बी dispossessed without his consent. In this case, the tenant has given in this case the tenant has given the possession of his property. In this case, the tenant has given the possession of his property with his free consent. In this case, the tenant has given possession of his property with his free consent. Full stop. Therefore, in this case, tenant is not dispossessed. In this case, tenant is not dispossessed without his consent. Thus, suit by tenant under section 6 is not maintainable. अब नेक्स्ट एसेंशियल लिखो फोर्थ। पहले था बाय होम, सेकंड था अगेंस्ट होम, थर्ड था डिस्पोजेशन, फोर्थ है सूट। अच्छा मेरी बात और सुनो, हमारा ना एसआरए का सिर्फ कुछ ही सेक्शंस रह गए हैं। एक हमारा रेक्टिफिकेशन रह गया, एक रिसिशन और एक कैंसिलेशन। ठीक है, अगर मतलब अगर ये प्रपोजल दूं मैं मैम को कि मैं एक दिन ऑनलाइन क्लास आप लोगों की ऑर्गेनाइज कर लूं, मैं अपने घर से, तुम लोग अपने घर से, जो हमारी ये छुट्टियां आ रही हैं। हाँ, मंडे नहीं, ट्यूसडे वेंसडे किसी दिन, ट्यूसडे को जैसे रख लें, वेंसडे को तो फिर दशहरा। मंडे तो वैसे ही यहाँ पे छुट्टी होती है। अरे भाई तुम सुन लो किसी दिन। ठीक है, ट्यूसडे ठीक है। संडे को नहीं रखते। हाँ कल। हमने कौन सा नशे करके क्लास लगानी है? हमारी तरफ इशारा हो रहा है। तो ठीक है, अगर ये चीज है, मैं मैम को एक प्रपोजल देती हूँ कि हम लोग वो जो हाथी की पूंछ रह गई है वो हम उस क्लास में खत्म कर लें। ठीक है, सो दैट नेक्स्ट वीकेंड से हमारा कोई नया सब्जेक्ट या अगर हमारा रजिस्ट्रेशन जो चल रहा था वो हम शुरू कर दें। वैलिड है ये? ठीक है, ताकि हम अगले हफ्ते तक ना डालें इसको। चलो बस ठीक है। इसमें लिखो सूट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 64 ऑफ लिमिटेशन, according to section 64 of article 64 of limitation act, the limitation period for suit of recovery of possession in case of dispossession is 12 years. However, section 6 subsection 2 of SRA provides for a different limitation period which is of 6 months. Therefore, first point,
द लिमिटेशन पीरियड, therefore फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, द लिमिटेशन पीरियड फॉर सेक्शन 6 is 6 months. दीपांशु अभी नहीं, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? वहां पे तो आ रहा है। सेकंड पॉइंट, this period of 6 months, this period of 6 months shall begin to run from date of dispossession and not from date of knowledge. Third point, while computing, कहाँ पे? Date of knowledge, full stop. Third point, while computing the period of limitation of 6 months as per section 29 clause 2 of Limitation Act, the provisions of section 4 to 24, 29 subsection 2 of Limitation Act, the provisions of section 4 to 24 of Limitation Act will apply. ठीक है, याद है कुछ हमने पढ़ा था? 29(2) कहता है कि अगर कहीं और किसी स्पेशल लॉ में कोई लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है तो वो पीरियड अप्लाई करेगा, बट उन्होंने कहा कि जब हम वो पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो जो प्रिंसिपल्स हैं 4 से लेकर 24 तक वो जरूर अप्लाई होंगे। तो मतलब कि लिमिटेशन पीरियड तो स्पेशल एक्ट का चलेगा, बट कंप्यूट करने के प्रिंसिपल्स जो है वो 4 से 24 वाले ही चलेंगे, लिमिटेशन एक्ट। अब ये तो आप कर चुके हो, ठीक है, लिमिटेशन भी कर चुके हो, 4 से 24 तक तो कर चुके हो, 25 तक हो चुका है आप लोगों का, 26 तक, बस 23 रह गया, और समवेयर 27 तुम लोगों ने मेरे साथ एसआरए में कर लिया हुआ है, ठीक है, तो मतलब तुम्हारा लिमिटेशन भी खत्म ही है। अब सूट के अंडर सब हेडिंग और लिखो, अपील। इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 subsection 3, the decree passed in the suit of section 6, the decree passed in the suit of section 6 is not appealable nor review can lie. APPEALABLE, ना ही अपीलेबल है ना ही रिव्यू हो सकता है, फुल स्टॉप। देयरफॉर आगे लिखो, देयरफॉर पर्सन अग्रीव्ड बाय decree of section 6, therefore person aggrieved by decree of section 6 has a right only of filing revision in relation to it. नेक्स्ट लाइन में लिखो, thus suit of section 6 thus suit of section 6 is considered to be a summary suit.
नेक्स्ट सब हेडिंग लिखो, इशू ऑफ टाइटल। इशू, हाँ, सूट के अंडर ही, सूट के अंडर अभी हमने अपील भी सब हेडिंग थी ना, उसमें एक और सब हेडिंग लिखो सूट में, इशू ऑफ टाइटल। इसमें लिखो, इन अ सूट ऑफ सेक्शन 6, इन अ सूट ऑफ सेक्शन 6, the court is competent to decide, the court is competent to decide only the question of dispossession. Full stop. The party cannot raise the party cannot raise defense of title, and court cannot decide the same under suit of section 6. ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेक्शन 6 खत्म। अब हम अपना जो नेक्स्ट बंच है सेक्शन 7 और सेक्शन 8 का, जो सिमिलर टर्म्स पे है हमारे सेक्शन 5 और 6 के, हम वो देखते हैं। एंड अगेन वो सिर्फ आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको लिखवा दूंगी, जितना हमारे को प्री के लिए चाहिए। ठीक है, तो हम बेयर एक्ट खोलते हैं उसकी। सेक्शन 13 का क्लॉज 2 पढ़ा है, तो ये गलत है आंसर। देखो जो तुम्हारे, अगर नहीं है तो फिर क्या ऑप्शन है? हाँ, फिर मुझे क्वेश्चन ला के दिखाओ। लेसर वाला था। देखो अगेन, आपकी जो बुक्स में हर एक आंसर जो है जरूरी नहीं है कि सही दिया हो। ठीक है, अपनी थोड़ी सी प्रूडेंस लगाया करो और वो आंसर चेक किया करो, अंधाधुंध होके उनके आंसर्स पे भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो सेक्शन 7 हम बात करते हैं, एंड सेक्शन 8 की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्या है। सेक्शन 7 कहता है रिकवरी है, किस चीज की रिकवरी है? हाँ, मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी है। तो पहला आपका प्री का सवाल आ गया ये। फिर वो कह रहा है कि अ पर्सन एंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पर इन्होंने बोला मूवेबल प्रॉपर्टी है और वो क्या है, स्पेसिफिक है। तो उन्होंने कहा आप क्या कर सकते हो, आप केस कर सकते हो इन दी मैनर प्रोवाइडेड बाय सीपीसी। ठीक है, अब मैनर प्रोवाइडेड बाय सीपीसी क्या है? पहली चीज जो हम डिस्कस करते हैं, ज्यूरिसडिक्शन। अगर आपने किसी मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट करना है तो उसकी ज्यूरिसडिक्शन फॉल करती है, मूवेबल की बात कर रही हूँ, इमूवेबल सेक्शन 16 में है एंड एक क्लॉज है जो मूवेबल से रिलेटेड है, बट अदरवाइज जो आपकी ज्यूरिसडिक्शन है अंडर सेक्शन 20 ऑफ सीपीसी फॉल करता है। सेक्शन 20 ऑफ सीपीसी क्या कहता है? जहां पर डिफेंडेंट रिजाइड करता है, जहां पर ही वॉलंटरली वर्क्स फॉर गेन, ठीक है, या कैरीज ऑन हिज बिजनेस, वो जगह क्या है, या कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, वो सारी जगहें हैं जहां पर जिस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बनती है। ठीक है, मतलब कि अगर हमें रिकवरी करनी है ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और जहां से हमारे से वो प्रॉपर्टी ली गई है,
जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बन जाती है। ठीक है, फिर अगर हम सीपीसी का एक और प्रोविजन देखें, चलो मैं सीपीसी खोल रही हूँ, एक बारी देखो सीपीसी। ऑर्डर 7 सीपीसी का बात करता है प्लेंट के बारे में। ठीक है, ऑर्डर 7 कहता है कि ये कुछ रूल्स हैं जो हम दे रहे हैं, और आपको प्लेंट के देने के टाइम, प्लेंट बनाने के टाइम जब आप दोगे हमें, तो ये रूल्स फॉलो करने हैं। उसका रूल 2 क्या कहता है, वेयर द प्लेंटिफ स्यूज फॉर, इन्होंने एक मीन प्रॉफिट्स दिया हुआ है, इसको हम छोड़ के यहां पर आते हैं, मूवेबल्स इन पोजेशन ऑफ द डिफेंडेंट और फॉर डेट्स, यहां से तो हमने ये क्या पढ़ना है, यहाँ पे वो कह रहे हैं जहां पर प्लेंटिफ ने स्यू किया है फॉर द मूवेबल इन पोजेशन ऑफ द डिफेंडेंट, द प्लेन शैल स्टेट अप्रोक्सीमेटली द अमाउंट और वैल्यू स्यूड फॉर। उन्होंने कहा कि जब आप क्या कर रहे हो, आप ऐसा सूट कर रहे हो एक पर्सन पर जिसके पास आपके मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन है, तो मतलब आप किस लिए कर रहे हो, रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए कर रहे हो, और वो रिकवरी ऑफ पोजेशन का सूट कहाँ डला हुआ है, सेक्शन 7 में। तो वो कह रहे हैं कि आपको प्लेंट देते टाइम ना एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी बतानी पड़ेगी ऑफ द अमाउंट और वैल्यू स्यूड फॉर। इसके दो रीजन है, एक तो कोर्ट फीस सर्टन करोगे आप इससे, दूसरा है कि अगर अब वो प्रॉपर्टी इन एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो खराब हो गई है, वो डिटीरियोरेट हो गई है, या वो उसने तोड़ दी है, डिस्ट्रॉय कर दी है, तब आप रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी तो नहीं कर पाओगे, बट कॉम्पनसेशन तो लोगे उस पर्पस के लिए। ठीक है, तो इन्होंने बोला ये मैनर है जो हमने सीपीसी में दे रखी है। हाँ, ऑर्डर 7 रूल 2। फिर इन्होंने कहा कि इसका लिमिटेशन पीरियड कितना होगा, हम कितने टाइम में सूट कर सकते हैं। आप देख रहे हो एक सेक्शन को पढ़ने के लिए हमें कौन सी एक्ट्स खोलनी पड़ रही है, ये है इंटरलिंकिंग, और ये अगर आप इस इंटरलिंकिंग से लॉ पढ़ोगे ना तभी बनेगा कुछ। अगर उससे पहले बन भी गया ना तो कोर्ट में बैठ के आप बड़े बुरी तरीके से वकीलों के द्वारा आपकी बेइज्जती की जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो वो हैं उनको भी सब कुछ आता है, बट जो प्रैक्टिसिंग वकील हैं, इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सर्टनली डेफिनेटली लॉ के कुछ एस्पेक्ट्स उनके आपसे बहुत बेटर होंगे। ठीक है ना, तो वो चीज हम डिनाई नहीं करते। अगेन हम कह रहे हैं कि जब हम लॉ करते हैं ना तो हम हर रोज कुछ नया सीखते हैं। सो ये चीज, जब आप जज बन जाओ ये मत सोचना कि बस मुझे तो सब आता है। ठीक है, अगर कोई सीनियर वकील या कोई जज या कोई चीज अगर आपको समझाई जा रही है तो समझने की, सुनने की, एनालाइज करने की कोशिश करना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वहां पर अंधाधुंध होके जो वकील कह रहे हैं वो मान लो, क्योंकि वकीलों का तो काम ही यही है। ठीक है, बट अगर वो कोई पॉइंट बोल रहे हैं तो थोड़ा सा अपना दिमाग चला के देखना कि क्या वो वैलिड है। ठीक है, सेक्शन 91 कहता है आपने क्या करना है, कॉम्पनसेशन के लिए करना है,
सारे कॉम्पनसेशन वाले ही हैं। तो बेसिकली इसका जो सूट है ना, वो सेक्शन 91B में फॉल करता है, आर्टिकल सॉरी। उसका लिमिटेशन पीरियड उन्होंने दिया हुआ है 3 इयर्स, और वो 3 इयर्स कब से शुरू होते हैं? when the property is wrongfully taken or injured or when the detainer's possession has become unlawful। तो जब आपसे वो प्रॉपर्टी ली जाती है, उस दिन से 3 साल का टाइम शुरू हो जाता है। किस चीज के लिए? रिकवरी के लिए। एक मिनट रुकना जरा। लिमिटेशन ऐसा क्या हो गया कि सारे उठ के बाहर जा रहे हैं? क्या? हाँ हाँ प्लीज। मेरी बात सुनो यार, एक टॉपिक रहता है, लेके खत्म करो। सब्जेक्ट खत्म होएगा तुम्हारा, नया अगला सब्जेक्ट शुरू होएगा। होते ही नहीं है, तुम लोग अपना लॉस करवा रहे हो। तुम लोग हर बारी ऐसे ही वो करोगे तो कैसे चलेगा? एक सेक्शन रहता है, लेके क्लास खत्म करो। होगी बात मैम से? मैम तुमसे पूछ के आएंगे कि बच्चे हैं तो ही आऊं? कर लो। चलो, आर्टिकल 69 कहता है फॉर स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपने उसकी रिकवरी करनी है तो जब रॉन्गफुल प्रॉपर्टी इज टेकन उसका 3 इयर्स है रिकवरी के लिए भी, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 69। एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 91B, अगर आपने उसके लिए कॉम्पनसेशन क्लेम करनी है तो उसके लिए भी 3 साल का ही लिमिटेशन पीरियड है। तो ये आपकी सीपीसी की मैनर है जो दी गई है। हाँ, मतलब कि जो सेक्शन 7 के जो प्रोसीजर है अकॉर्डिंग टू सीपीसी एंड लिमिटेशन, वो ये है। जुरिस्डिक्शन अंडर 20 है, और प्लेंट में आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू देनी पड़ेगी। एंड अगर लिमिटेशन पीरियड देखो, आर्टिकल 69 कहता है कि 3 साल है रिकवरी के लिए, कॉम्पनसेशन लेनी है 91B तो भी 3 साल है। ठीक है। अब एक और चीज जो हमने यहाँ पर पढ़नी होती है वो ये है, वो ये कहता है एक्सप्लेनेशन, जो हमने सेक्शन 5 में भी पढ़ी थी कि वर्ड एंटाइटल्ड का मतलब ये नहीं होता कि आपका टाइटल होना चाहिए। वर्ड एंटाइटल्ड का मतलब होता है कि आपके पास राइट होना चाहिए। और यही चीज इन्होंने भी लिखी। इन्होंने कहा यहाँ पर भी जो पर्सन एंटाइटल्ड है उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक टाइटल होना चाहिए। अगर कोई भी स्पेशल या टेम्पररी राइट है जिसकी वजह से उस पर्सन के पास उस मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन का राइट है, तो वो क्या है? इट इज सफिशिएंट टू सपोर्ट दिस अंडर दिस सेक्शन। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को अगर अपने नोट्स देती हूँ
कॉपी करने के लिए। तो उस टाइम क्या है, तुम लोग वो पर्सन हो जो एंटाइटल्ड हो, तुम्हारे को एक स्पेशल और टेम्परेरी राइट दिया गया है। अब वो नोट्स तुमसे कोई, तुम्हें कोई और डिस्पोजेस कर देता है, तो तुम्हारे पास अंडर सेक्शन 7 राइट है टू फाइल अ सूट एंड क्या करने का, रिकवरी लेने का उस मूवेबल प्रॉपर्टी। एंड एक्सप्लेनेशन 1 में उन्होंने इसका एग्जाम्पल दे दिया कि ट्रस्टी भी जो है ना, उसके पास भी क्या होता है, एक्चुअली ट्रस्ट बना किसके लिए, बेनिफिशियरी के लिए बना होता है, बट दिया किसको जाता है, ट्रस्टी को। ट्रस्टी को दिया जाता है कि वो ध्यान रखे उस चीज का। तो उन्होंने कहा उस ट्रस्टी के पास भी राइट है, अगर कोई और पर्सन डिस्पोजेस करा देता है तो उस पर्सन ट्रस्टी के पास भी राइट है टू फाइल अ सूट अंडर सेक्शन 7 एंड रिकवर द प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर है। तो ये है हमारा सेक्शन 7, इसके पॉइंट्स लिख लें। इसको हम क्वेश्चन वाइज लिखते हैं, ठीक है, बड़े शॉर्ट नोट्स हैं इसके। क्वेश्चन लिखो, हाउ अ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, हाउ अ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी रिकवर्ड। इसमें लिखो, हाँ, इसमें आंसर लिखो, सूट फॉर रिकवरी ऑफ, सूट फॉर रिकवरी ऑफ specific movable property can be filed by a person who is entitled to, by a person who is entitled to immediate possession, क्या, entitled to immediate possession under section 7 of SRA, full stop. The procedure is provided under, the procedure is provided under CPC. ठीक है, आगे लिखो, the limitation period, the limitation period for such suit under section, under article 69 of limitation act, 69 of limitation act is 3 years, full stop. If a suit for compensation, if a suit for compensation of movable property has to be filed, then the limitation period is 3 years under article 91 has to be filed, क्या लिखा है, then the limitation period is 3 years according to article 91B of limitation act. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बाय होम सूट ऑफ सेक्शन 7, whom suit of section 7 can be filed. इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, पर्सन हैविंग एब्सोल्यूट राइट ओवर द प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट
right over the property, that is the owner. Second point, person having temporary interest over the property, person having temporary interest over the property, ब्रैकेट में लिख दो explanation 2. एक्सप्लेनेशन 2, ये वाली स्पेशल और टेम्पररी राइट. आगे लिखो थर्ड पॉइंट, पर्सन हैविंग स्पेशल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, person having special interest in the property, for example bailey, pawnee और trustee, एंड ब्रैकेट में लिख दो एक्सप्लेनेशन 1. अब लिखो नोट, सूट अंडर सेक्शन 7 कैन बी फाइल्ड even against the owner. Suit under section 7 can be filed even against the owner because a person may have a temporary or special right independently of ownership by virtue of being a trustee, bailey or pawnee. अब है सेक्शन 8. सेक्शन 8 कहता है कि अगर एक पर्सन एंटाइटल्ड है टू द इमीडिएट पोजेशन ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो जो पर्सन इन पोजेशन है, एक्चुअली इन पोजेशन है, उसकी लाइबिलिटी बन जाती है कि वो उसको डिलीवर करे. मतलब कि आप एंटाइटल्ड थे टू द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी थी मेरे पास, ठीक है. अब मेरी ये ड्यूटी बन जाती है. सेक्शन 7 में हमने आपको राइट दिया, सेक्शन 8 में उन्होंने मेरी ड्यूटी बना दी कि मेरी ड्यूटी है कि मैं उस पर्सन को क्या दूं, उस पर्सन को वो करूं, इमीडिएट पोजेशन डिलीवर करूं. Any person having the possession or control of a particular article of movable property, ये हम नहीं कर रहे, may be compelled specifically to deliver it to the person entitled to its immediate possession. यह है जनरल रूल. पर वो कह रहे हैं कि अगर ये सिचुएशंस है तो आपको करना पड़ेगा. क्या? When the thing claimed is held by defendant as agent or trustee of the plaintiff, मैंने आपके बिहाफ पे कुछ होल्ड करके रखा हुआ था. अब जब आप मुझसे वो चीज मांग रहे हो तो मैं लायबल हूं आपको वापस देने के लिए. इस पे रूल ऑफ एस्टॉपल लग जाता है. मैं डिनाई नहीं कर सकती आपका टाइटल क्योंकि मैं एज एन एजेंट होल्ड कर रही हूं आपका. नेक्स्ट, when compensation in money would not afford plaintiff adequate relief for the loss of the thing claimed. यहां पर वो कहते हैं अगेन, अगर ऐसी कोई चीज है, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, मेरे घर में मेरी दादी जी की छड़ी है, अभी तक दादी जी की छड़ी है, दादी जी की स्पेक्स है, ठीक है.
अब वो चीजों की वैल्यू क्या है, इमोशनल वैल्यू है। उसके लिए आप मेरे पापा को करोड़ों रुपए भी लाकर दे दो, वो नहीं लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसी कोई चीज है तो वो भी आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, when it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by its loss। ठीक है, कि वो चीज को, उस चीज का अगर आपको नहीं मिलेगी तो डैमेज असर्टन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। when the possession of the thing claimed has been wrongfully transferred from the plaintiff। आपसे ट्रांसफर करा दी गई है लेकिन वो ट्रांसफर क्या हुआ है, रॉन्गफुल है, नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ है, धोखे से करवा दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इन सारी चीजों में जो पर्सन एंटाइटल्ड है टू द पोजेशन, आपको उसको पोजेशन देना पड़ेगा। पर उन्होंने कहा एक कंडीशन है, ओनर के खिलाफ आप ये केस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर एक पर्सन एक्चुअली उस चीज का ओनर है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपको पोजेशन दे। क्यों? क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस कहता है पोजेशन इज 9 पॉइंट्स इन लॉ, बट ओनरशिप में 10 के 10 पॉइंट्स है। तो ओनर हैज अ बेटर टाइटल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, इवन अगेंस्ट द पोजेसर। ठीक है, एंड ये कुछ प्रिजम्पशन है, और ये कौन सी प्रिजम्पशन है, शैल प्रिजम्पशन है। ये है रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। कोर्ट कहती है कि आप हमारे पास अगर आओगे ना ये वाला सूट लेकर, तो हम ये मान लेंगे कि कॉम्पनसेशन इन मनी एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगी, एंड डैमेज असर्टन करना बहुत डिफिकल्ट है इस केस में। इट इज अपॉन यू कि आप इसको रिबट करो और ये प्रूव करो कि कॉम्पनसेशन जो है अफोर्ड कर, कॉम्पनसेशन एडिक्वेट रेमेडी होगी, और एक्चुअल डैमेज निकालना भी इजी है। तो प्रिजम्पशन कोर्ट क्या मानेगी कि कॉम्पनसेशन नॉट एडिक्वेट, डैमेजेस निकालना इज सर्टन करना मुश्किल है, बट अगर आप रिबट करके इसको प्रूव कर सकते हो तो कोर्ट वो मान लेगी। हमने यहाँ पर पढ़ा ना, ये दोनों चीजें इससे रिलेटेड है, ये एक्सप्लेनेशन। वो कहते हैं ये तो हम मान के ही चलेंगे कि ऐसा हो रहा है, और हम पोजेसर को जो इमीडिएट पोजेशन के लिए एंटाइटल्ड है उसको हम पोजेशन दे देंगे। इट इज अपॉन यू कि आप रिबट करके बोलो कि ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन, या अगर एंटाइटल्ड है भी तो कॉम्पनसेशन से काम चल जाएगा, तो मुझे इमीडिएट पोजेशन डिलीवर करने के लिए ना कहा जाए। कि कॉम्पनसेशन इज एन एडिक्वेट रिलीफ, तो हम कॉम्पनसेशन दे देंगे, फिर हमें डिलीवरी करने की जरूरत नहीं है। आपकी घड़ी की तरफ नजर क्यों जा रही है? हाँ, घर जाना है। चलो इसके, इसका एक छोटा सा वो है, मैं वो भेज दूंगी, इसके नोट्स ग्रुप में डाल दूंगी। इसका सिर्फ इतना सा ये पैराग्राफ सही है। नहीं कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा और बेटर इसको रिफाइन करके वो करूंगी। ठीक है, और तुम लोगों का होमवर्क होगा डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 7 और 8। 5 और 6 का लिख लिया हुआ है, तो अब तुम्हारा ये होमवर्क है डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 7 और 8। ठीक है, तो बाकी ये जो भी होगा ना, ये वाला जो हमने ऑनलाइन क्लास लेनी है, ये ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन लेके रेक्टिफिकेशन, रिसिशन और कैंसिलेशन खत्म करेंगे, है ना। बहुत टंग गया हमारा बेमतलब का सब्जेक्ट।